Assalamu alaikum. I'm Shabana Sheikh and I am a computer teacher. Today I have a chapter about the grade 10 and the name of chapter is problem solving and algorithm designing. This is the first chapter of a new book. Problem. Problem solving basically क्या है? Problem solving is a process of finding solution of difficult or complex issues. It is a process by which any kind of problem is solved. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि अगर आप किसी चीज का सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए वो क्या स्टेप्स हैं जो आप अडॉप्ट करेंगे, जिन स्टेप को फॉलो करके आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन या आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो वो बेसिकली वो प्रोसेस टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन एंड वो कोर फीचर जो भी किसी चीज को आप कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप से। यहाँ पे हम अपनी तमाम सिचुएशन को, तमाम प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं। जैसे आप अपनी रोजमर्रा लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे टास्क जो पहले हम मैनुअली करते थे, आजकल हम उसे कंप्यूटर के थ्रू एक एप्लीकेशन की सूरत में कन्वर्ट कर चुके हैं। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम आपने उबर या करीम के थ्रू सॉल्व किया, इसी तरह आपने फूड पांडा की एप्लीकेशन निकाली जो घर बैठे आपको डिलीवरी करती है आपके चॉइसेस के फूड। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग है, यानी कि तमाम चीज़ों की हमने एप्लीकेशन बना ली। जो हम पहले मैनुअल काम करते थे, अब उसे हम कंप्यूटर के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू इंस्टेंटली सोल्यूशन या उसके सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते। तो बेसिकली उन चीज़ों को लिखने के स्टेप्स होते हैं, उन प्रॉब्लम को लिखने के तरीक़ेकार और उनका पूरा उन प्रॉब्लम को बहुत ही डिटेल में लिख लिया जाता है। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट इज प्रॉब्लम? A problem is a situation preventing something from being achieved. A problem can be a task, a situation, or any other thing in simple language. A problem is a question which requires an answer or a solution. In any case, a problem is considered to be a matter which is difficult to solve or settle, a doubtful case, or complex task involving doubt and uncertainty. कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप चाहते हैं कि इसका आंसर रिक्वायर्ड है, इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं और इसको डिफ़िकल्ट चीज़ है और कोई भी डाउटफुल केस है और उसके आप सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, वो आपका प्रॉब्लम है। ये कोई भी टास्क हो सकता है, कोई भी सिचुएशन है और कोई भी थिंग। Plan the solution of a problem. Problem can be solved with the help of computers, but for this programmer has to plan and categorize tasks that lead to the solution of the problem. Problem solving strategies are very important aspect of problem solving is developing good strategies. There are many strategies for solving a problem. A strategy is an approach for a series of approaches created to solve a computational problem. Strategies are designed according to the nature of the problem. Strategies are flexible and show various steps to reach the solution. A strategy in itself might produce incorrect result, but an algorithm based on such strategy will always produce correct result. For solving any problem, it is important to know what the problem really is and how it should actually be. If there was no such problem, the question about end result helps you to find the gap and create a strategy for solution. प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी करना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एक तरह की अप्रोच है या सीरीज ऑफ अप्रोच हो सकती है जिसमें आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और बहुत ही फ्लैक्सीबल होनी चाहिए स्ट्रैटेजी जो आपके अप टू द मार्क रिजल्ट जनरेट कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस is a step-by-step process. There are 4 basic steps involved in finding a solution for a problem as given. Number 1, define the problem. Define the problem. Basically, in problem solving process, the first step is defining or identifying the problem. It is the most difficult and the most important of all the steps. You involve diagnosing the situation,
so that the focus should be on the real problem and not on its symptoms. कोई भी प्रॉब्लम जो आप या सिस्टम जिसको मैनुअली है और कंप्यूटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसके तमाम फैक्ट्स एंड फिगर को कलेक्ट करना और बहुत अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करना कि ये है प्रॉब्लम, इसको कन्वर्ट करना, इसको सॉल्व करना है और उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डिस्क्राइब करना जो है आपका डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम कहलाता है. A well described problem will also help others to understand the problem. बेसिकली क्या है, जब आप इसको वेल डिफाइन कर लेते हैं तो ये ना सिर्फ अंडरस्टैंड इजीली हो जाता है बल्कि आप दूसरों को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवा सकते हैं. सेकेंड स्टेप इज जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं. आप एक ही प्रॉब्लम को कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. उससे ये होता है कि अगर आप सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकालें कि ये इसका रिजल्ट आ रहा है तो वो कभी कभी गलत भी हो सकता है और वो आइडियल सोल्यूशन नहीं हो सकता. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द आइडियल सोल्यूशन तो मे बी जनरेट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस. तो यहाँ पे जब हम सीरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स बना लेते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये क्या होता है कि उसकी बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारे यूजफुल जो स्टेजेस हैं वो हमें फाइंड आउट हो जाते हैं. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जनरेट करने के ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के, क्योंकि हमारे पास इसके थ्रू आप इससे बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाते हैं. ठीक है, तो ये भी टूल है, यूजफुल टूल है टू फाइंड आउट एंड जनरेट द डिफरेंट सोल्यूशन. नंबर थर्ड, इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव. Many alternative solutions to the problem should be generated before final evaluation. जब आप फाइनल एवोल्यूशन की जानिब जाते हैं तो आप उसे एवेल्यूएट करते हैं कि इस प्रॉब्लम जो भी आपने फाइंड आउट की है इसके कॉस्ट क्या है, इसके एक्सेप्टेबल है नहीं है, और ये जो है आपका हर सिचुएशन में सही पे तौर पे वर्क करेगा और आप इसकी कितनी टाइम कंज्यूमिंग है और इससे जो है आपका कितनी कॉस्ट आ रही है. तो ये सारे जो इवेल्यूएट करना, उसकी कॉस्ट मालूम करना और उनमें से बेस्ट वंस को चूज करना, दिस इज द इवेल्यूएट एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन. Implement and follow up on the solution. The plan for best solution also includes planning on what happened next if something goes wrong with the solution, if it is not worked out of way it was required. When the best solution is implemented, it is important to track and measure the result to be able to answer questions such as, did it work? Was this a good solution? Did we learn something here in the implementation? What we could apply to other potential problem? हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट सिचुएशंस में सुटेबल ना हो, तो आप उसमें से ये सारी चीज़ें फाउंड आउट करते हैं और इम्प्लीमेंट करके आपको पता चलता है कि आपका ये जो है अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है और ये किसी भी डिफरेंट पॉसिबल इम्पैक्ट सोल्यूशन है और ये किसी भी सिचुएशन में आपके लिए राइट सोल्यूशन है और उसका फॉलोअप लेने से आप उसकी कॉस्ट और उसकी तमाम चीज़ें आपको अचीवेबल हो जाती हैं और ये आपके विद इन बजट है. ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करने के बाद और फॉलोअप लेने के बाद चीज़ें फाइंड आउट करते हैं. Algorithms are widely used throughout all areas of information technology. IT, a search engine algorithm, for example, takes search things of keywords and operators as input, searches its associated databases or relevant web pages, and returns result. Another common example is online advertisement, where the algorithm takes age, gender, region, and interests as input and then displays ads to only those people who match the criteria. Algorithm क्या है basically? So how you can define it is a set of instruction, step-by-step rules that are followed to solve a problem. It is a tool for solving a well-specified computational problem in our daily life. As well, we follow various algorithms without knowing. For example, we follow a daily routine after waking up in the morning. We follow a set of instructions while driving a car. We follow recipes in cooking food or making tea. किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन लैंग्वेज में अगर हम लिख लेते हैं
टेक्स्ट बेस है ये एल्गोरिथम कहलाता है। और एल्गोरिथम बहुत ही यूजफुल है। क्या एडवांटेजेस है वो हम देख लेते हैं। रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। The advantages of using an algorithm to solve a problem or make a decision is that it produces the best possible answer every time. This is useful in solution where accuracy is required or where similar problem needed to be solved more often. In many cases, computer programs can be developed with the help of this process. Then data is entered in that program so that the algorithm can be executed to come up with the required solution. A computer programmer has to design various algorithms to create a program. These algorithms can vary from retrieving input from a user to computing complex formulas to reach a conclusion. This data is then rearranged into a meaningful way to present to the user. The user then makes decision based on the presented data. एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या है कि अगर ये बेस्ट वे में लिखा हुआ हो तो बहुत ही स्टेप इसके एक्यूरेट स्टेप होते हैं और इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्यूरेट स्टेप आपने लिख लिए और कोडिंग करने के लिए कम्प्लीटली जो है एल्गोरिथम को अप्लाई कर देते हैं। हम सारी कोडिंग किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में एल्गोरिथम के थ्रू कर सकते हैं। तो ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेज पे सारे स्टेप लिखे जाते हैं। द क्वालिटीज ऑफ गुड एल्गोरिथम क्या है। इनपुट एंड आउटपुट शुड बी डिफाइंड प्रिसाइजली। बहुत अच्छे से डिफाइन हुए वो इनपुट आउटपुट तमाम। ईच स्टेप इन एन एल्गोरिथम टू बी क्लियर एंड अनबाइगस। बहुत ही डाउटफुल ना हो, एल्गोरिथम बहुत ही क्लियर वे में लिखा हुआ हो। एल्गोरिथम आर सपोज टू बी मोस्ट इफेक्टिव अमंग मेनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव हो जितने भी आपके पास सॉल्व करने के प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड है। एंड एल्गोरिथम शुड नॉट इंक्लूड कंप्यूटर कोड। Instead, the algorithm should be written in such a way that it can be used in different programming languages. Algorithm इस तरह का लिखा हुआ हो कि उसको आप बहुत आसानी से किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो उन स्टेप को फॉलो करके। तो बहुत ही बेस्ट वे है आपके पास एल्गोरिथम किया जा सके। कुछ एग्जाम्पल है एल्गोरिथम को सॉल्व करने की। तो वी हैव फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल ऑफ सिंपल एल्गोरिथम जस्ट लाइक दैट कि आपके पास एक प्रॉब्लम है मेकिंग अ कप ऑफ टी। ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आप एक कप ऑफ टी बनाइए। अब उस कप ऑफ टी को बनाने के लिए क्या स्टेप है तो उसका एल्गोरिथम लिख लीजिए। क्या है, स्टेप 1 के स्टार्ट किया आपने, नंबर 2 के प्लेस द फ्रेश वाटर इन अ पॉट और अ केटल। आपने फ्रेश वाटर लिया अपने पॉट में या केटल में, बॉयल द वाटर। Third step, number 4, put the black tea leaf in that pot. 5 step, after that add some milk into that pot. Number 6, add some sugar. Number 7, boil for some time and then stop. तो ये प्रोसेस है, ये स्टेप है जिनको फॉलो करेंगे आप और अपनी टू मेकिंग अ कप ऑफ टी। तो इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ का और आप उस तरह से जब स्टेप लिखेंगे ये आपका जो आपके टेक्स्ट बेस लिखा जा रहा है ह्यूमन लैंग्वेज में, ये एल्गोरिथम कहलाता है। एक दूसरी चीज़ है कि आफ्टर एल्गोरिथम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है कोडिंग में या प्रोग्रामिंग में कि फ्लो चार्ट। एक तो एल्गोरिथम के थ्रू आप कोडिंग करते हैं बल्कि, और फ्लो चार्ट अगर देखिए एक चीज़ होती है कि आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है एक टेक्स्ट लिखा हुआ और एक पिक्चर की शक्ल में मौजूद हो तो ज़्यादा चीज़ें वही अट्रैक्ट करती हैं जो पिक्चर की शक्ल में हो या डायग्राम बनी हुई हो, वो हमें ज़्यादा आई कैचिंग होता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। तो सिमिलरली if you are writing an algorithm, so if you are representing in a graphical or pictorial representation, that is called flowchart with the help of different symbols. flowchart क्या है, ये physical representation है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रोसेस की, and it is used to show the sequence of steps and logic of solution for a problem before writing the full computer program. It also helps in communicating the steps of the solution to others by using different symbols. Definition क्या है आपके फ्लो चार्ट की? It is a general purpose tool used to define the sequence or different types of processes or operation in information system or program. It shows processes and their flow visually using diagram.
It describes graphically different steps of programs or any operation and their sequences or flow using different symbols. फ्लो चार्ट क्या है बेसिकली कि आप अपने उन एल्गोरिथम को जो आपने स्टेप बाय स्टेप लिखा था, एक टेक्स्ट बेस लिखा था, उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट सिंबल. कुछ शेप होती है डिफरेंट, उनकी हेल्प से आप उसके आप डायग्राम बना लेते हैं, वो आपका फ्लो चार्ट कहलाता है. अच्छा, किसी प्रोग्राम की लॉजिक को समझने के लिए फ्लो चार्ट बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. इंस्टेड ऑफ एल्गोरिथम, उसके मुकाबले में फ्लो चार्ट अंडरस्टैंडिंग वे में ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं. तो ये आपके कुछ डायरेक्ट लाइंस के थ्रू फ्लो करंट शो करती हैं, और वो सिंबल क्या है जो फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे इनपुट लिया. तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपका इम्प्लीमेंट होगा. अच्छा जी, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एल्गोरिथम में एंड फ्लो चार्ट में. तो नाउ यू कैन डिफरेंसेस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. नंबर 1, algorithm is a step by step solution of a problem, and the flow chart is a diagram of different shapes which shows flow of data through processing system. Number 2, in algorithm text is used. Number 2, flow chart, in flow chart symbols or shapes are used. Number 3, algorithm is easy to debug. Debug का मतलब होता है एरर को सॉल्व करना, जबकि फ्लो चार्ट में क्या होता है, डिफिकल्ट टू डिबग. यहाँ पे डिबगिंग आसान नहीं होती, डिफिकल्ट होती है. नंबर 4, एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड. एल्गोरिथम में क्या होता है कि बहुत मुश्किल होता है इसको अंडरस्टैंड करना और लिखना, जबकि फ्लो चार्ट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड. इसको बनाना और इसको अंडरस्टैंड करना फ्लो चार्ट को आसान होता है. नंबर 5, एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल्स. एल्गोरिथम लिखते वक्त किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, जबकि फ्लो चार्ट के लिए रूल्स होते हैं कि उसको कंस्ट्रक्शन करते वक्त सिंबल ये यूज करना है, इसका सीक्वेंस यही हो. तो ये चीजें रूल्स अप्लाई किए जाते हैं फ्लो चार्ट में. नंबर 6, एल्गोरिथम इज द सीडो कोड ऑफ द प्रॉब्लम. सीडो कोड यानी कि कोडिंग, जो कोडिंग है आपका सोर्स प्रोग्राम है, वो बेसिकली एल्गोरिथम है. और फ्लो चार्ट इज जस्ट अ ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक. ये सिर्फ ग्राफिकली विजुअलाइज किया जा रहा है फ्लो चार्ट. तो ये डिफरेंसेस है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर, जो हम आज स्टार्ट करें. डेटा स्ट्रक्चर इज अ पार्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर टू यूज इट इफेक्टिवली. फॉर example, array data structure is used to store a list of items having the same data type. Data structure may be linear or non-linear data. डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजिंग डेटा कंप्यूटर में किस तरह से हो रहा है इफेक्टिवली. और जब मेमोरी में जब हम डेटा रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो जैसे एक सिंगल डेटा रखने के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं ना, वो सिंगल स्ट्रिंग या न्यूमेरिक वेरिएबल एक ही वैल्यू को रखना होता है मेमोरी में. लेकिन अगर मुझे मोर देन वन वैल्यू का मेमोरी में रखना है, तो उसके लिए फिर हम एरे के स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जो कि दो तरह की चीजें हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा. यानी कि किस दो शक्ल से हम मेमोरी मैपिंग करते हैं, डेटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनमें हम डेटा को मेमोरी में स्टोर कर रहे होते हैं. पहली टाइप है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन sequential order and each of the element is connected to its previous and next element. The structure have to convert a linear data structure in a single level and in single run. They are easy to implement as computer memory is also in a sequential form. Linear data structures are not efficient in memory utilization. Example of linear data structure are stack, queue, array, etc. Linear data basically क्या है, sequential या serially है, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4. ऑर्डरली इसको रखा जाएगा मेमोरी में. ये नहीं कि 1 के बाद 10 रख दिया और निकालते वक्त भी 1 के बाद कहीं से भी डायरेक्ट नहीं. जिस तरह सीक्वेंस से रखा जा रहा है, इसी तरह रिवर्स सीक्वेंस से इसको बाहर रिट्रीव भी किया जाएगा. और लीनियर डेटा की जो हमारे पास टाइप है वो है स्टैक, क्यू एंड एरे. स्टैक इज क्या है, बेसिकली स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलो अ पार्टिकुलर ऑर्डर to perform different operations. Items may be added or removed only at the top of a stack. Stack जैसे vertically डेटा रखा जा रहा है, जैसे एक बकेट में आप डेटा रख रहे हैं,
तो आपने जो सबसे नीचे रखा, फिर उसके ऊपर रखा, फिर जो सबसे आखिर में रखा, तो जब आप उसको निकालेंगे तो आप सबसे पहले जो आपको निकालना पड़ेगा, जो आपने सबसे आखिर में रखा था उसको सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, और जो सबसे पहले रखा था उसको आप सबसे आखिर में बाहर निकालेंगे। ये इस टाइप का फॉर्मेट है। और इनका ऑर्डर में भी क्या होता है, लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फिलो फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में रखेंगे वो पहले निकलेगा और जो पहले रखेंगे वो लास्ट में निकलेगा। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी है। और इसमें जो पुश करने से मुराद है कि आप उस स्टैक के अंदर डेटा एंटर कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे पॉप से मुराद है कि आप उसमें से डेटा इरेज कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो उसकी टर्म यूज होती है पॉप। एक और टर्म यूज होती है यहाँ पे ओवरफ्लो, यानी कि जब स्टैक पूरा फुल हो जाता है और उसमें आप फर्दर डेटा नहीं रख सकते, तो वो आपको ओवरफ्लो कहलाते हैं। इसी तरह स्टैक अगर बिल्कुल एम्प्टी हो और उसमें कोई डेटा मौजूद ही ना हो, तो वो आपका अंडरफ्लो की कंडीशन कहलाती है। तो ये टर्म यूज होती है स्टैक के अंदर नॉर्मली। और ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये स्टैक का फॉर्मेट है। सेकेंड टाइप है क्यू। आप यहाँ देखें, ये इसको रख रहे हैं हॉरिजेंटली, और ये क्यू क्या है, ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है विच फॉलो अ पार्टिकुलर ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन फीफो, यानी कि जो सबसे पहले रखेंगे उसको सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा। क्यू का क्या मतलब, लाइन में जो खड़े हों, जो सबसे आगे खड़े होते हैं वही सबसे पहले बाहर जाते हैं, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो कहलाता है ये। और इसमें डेटा के एंटर करने को एन क्यू कहते हैं, क्यू में डेटा एंटर करना एन क्यू कहलाता है, और उससे डेटा इरेज करना या बाहर निकालना डी क्यू कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो नजर आ रहे हैं, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये क्यू के फॉर्मेट को शो कर रहा है। इसके बाद थर्ड है एरे। एरे भी आपका मेमोरी, रेजिडेंशियल मेमोरी होती है, ये आपके मेमोरी में डेटा रखा जाता है, ये लेकिन सेम टाइप का, ये भी सिक्वेंशियल भी रखा जाता है, मगर इसकी टाइप एक ही होती है। अगर स्ट्रिंग डेटा रखे तो सब में स्ट्रिंग अल्फाबेटिकल, अगर न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक डेटा रखा जाएगा। ठीक है, इसमें एक ही टाइप यूज होती है। और विच होल्ड्स अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट डेटा एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज referenced by a set of index of consecutive number. The element of array are stored in successive memory location. Most of the data structure make use of arrays to implement their algorithm. Two terms are necessary to understand array. यहाँ पे array में दो terms हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, एक है element, दूसरी है index. element क्या है, जो आपका actual data है, वो एक्चुअल आइटम जो आप इसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टोर किया जा रहा है, वो आइटम जो है वो एलिमेंट कहलाता है। और इंडेक्स क्या है, उसकी लोकेशन। ईच लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड इंडेक्स। जैसे आप बुक में देखते हैं इंडेक्स होता है, जहाँ पे पेज नंबर वगैरह आप इंडेक्स में देख लेते हैं, हाँ इस पेज पे ये टॉपिक है, वहां पे डायरेक्ट उस पेज पे चले जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे वही वाला इंडेक्स है, यहाँ पे नंबर्स होते हैं और यहाँ पे उस डेटा की लोकेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है थ्रू द इंडेक्स। तो ये दो टर्म्स होती हैं। और ऑपरेशन लाइक ट्रावर्सल, सर्च, इंसर्शन, डिलीशन एंड सॉर्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एरे। ट्रावर्सल का मतलब होता है कि ईच एटम को रीड करना, हर आइटम से गुजरेगा, ट्रावर्सल का मतलब ये, यानी कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, डायरेक्ट नहीं जाएगा, हर उसको रीड करेगा, ये ट्रावर्सल है। सर्च का मतलब सर्चिंग करना कोई स्पेसिफिक, लेकिन सिक्वेंशियली। इंसर्शन कोई डेटा इसमें एंटर करना, डिलीशन कोई डेटा से बाहर निकालना, सॉर्टिंग करना, इसको अरेंज कर लेना, ये सारी चीजें एरे में पॉसिबल। इसके बाद सेकंड टाइप है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब ये किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर है, बेसिकली नॉन लीनियर, कनेक्टेड इन अ सीक्वेंस। ईच एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल पाथ, इसके मल्टीपल पाथ हैं, कोई एक पाथ नहीं है। टू कनेक्ट टू अदर एलिमेंट, ये एक देखें, एक है वो 2 2 3 से अटैच है, ये 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 से अटैच है, तो मल्टीपल पाथ है। दे सपोर्ट मल्टी लेवल स्टोरेज एंड ऑफन कैन नॉट बी ट्रेवर्स्ड इन सिंगल रन। अब देखिए सिक्वेंशियली नहीं है कि आप 1 के बाद 2 पर ही जाएं या 2 के बाद 3 पर ही जाएं, तो ये ट्रावर्सल नहीं है कि ईच आइटम से गुजरेगा, बल्कि डायरेक्ट एक्सिस एक तरह का, जैसे आजकल की जो मेमोरी है
रैंडम एक्सेस, वो आपकी बेसिकली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, नॉन लीनियर डेटा में आप जो एग्जाम्पल आप रीड कर रहे हैं वो है ट्री और ग्राफ। अब ये ट्री क्या है? बेसिकली दिस नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू represent data containing a hierarchical relationship between elements. Tree represents its element as the nodes connected to each other by edges. In each tree collection, we have one root node, which is the very first node in our tree. If a node is connected to another node element, it is called a parent node, and the connected node is called the child node. There is also a binary tree or binary search tree. A binary tree is a special data structure used to store data in which each node can have a maximum of 2 children. Each node element may or may not have child nodes. ट्री का मतलब है कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसकी ब्रांचेस निकल रही होती है, एक रूट होती है उसमें से डिफरेंट ब्रांचेस, यानी कि ग्रैंडफादर, फिर पेरेंट के चिल्ड्रन, हर उसमें से दो दो नोड निकल रही होती है, स्पेशल नोड्स जो कि चाइल्ड नोड्स कहलाती हैं। और इसमें 2 पॉइंट नोड होती हैं और एजेस होते हैं किनारे जो से, तो इसका स्ट्रक्चर आपका ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके बाद एक ग्राफ भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बट ये किस तरह का है? इसमें वर्टेक्स, ये फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट है कॉल्ड नोड्स और वर्टेक्स एंड एजेस दैट आर लाइंस दैट कनेक्ट एनी टू नोड्स। ये जो है हर नोड 2 से कनेक्टेड है ग्राफ की शक्ल में, और देखिए ये क्लोज कर रहे हैं, ये ओपन एजेस नहीं है। और आप इसमें ये होगा कि 1 से 2 और 2 से 1, यानी कि ट्रावर्सिंग है इसमें दो तरह की, 1 से 2 और 2 से 1 नोड पे जाएगा, और उनके दरमियान ये ट्रावर्सिंग हो सकती है 2 नोड के दरमियान। और नंबर ऑफ एजेस इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, वर्टेक्स हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है आपकी किस तरह की स्टोर होती है, रोल नंबर, स्टूडेंट, मार्क्स, ग्राफ, ताकि एक ही स्टूडेंट का रिलेटेड डेटा एक रोल नंबर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये इसके अंदर क्या है? इसके अंदर रूट है आपके अंदर और चाइल्ड है। अ साइकिल कैन आल्सो बी परफॉर्म द गिवन फिगर सर्कल रिप्रेजेंट नोड्स, वर्टेक्स, व्हाइल लाइंस रिप्रेजेंट एजेस। ग्राफ्स आर यूज्ड टू सॉल्व नेटवर्क प्रॉब्लम। कहाँ पे यूज हो रहा है ग्राफ? नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल इसकी है इंक्लूड टेलीफोन का नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, फेसबुक का नेटवर्क। A single mobile phone represented as a node vertex where is a connection with other phones can be shown as an edge between nodes. यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स है ग्राफ, undirected graph और directed graph. Undirected क्या है? In undirect graph nodes are connected by edges that are all bidirectional. Bidirectional का मतलब है कि एरो जा भी रहा है, एरो आ भी रहा है, दोनों डायरेक्शन है यहाँ पे एजेस के दरमियान। और यहाँ पे कनेक्ट यानी कि 1 से 2 और 2 से 1 इसकी बाय डायरेक्शनल है। तो ये ट्रावर्सल होगी यहाँ पे, यानी कि 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 1 पर आएगा नोड। और डायरेक्टेड क्या है? यहाँ पे बाय डायरेक्शनल नहीं है बल्कि सिंगल डायरेक्शन है, और ये इसका हेड यहाँ पे शो कर रहा होता है कि 1 से 2 पर जाएगा, 2 से 1 पर नहीं आएगा। तो ये डायरेक्ट ग्राफ है, ठीक है। और दे ओनली गो इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एज कनेक्टेड नोड 1 and 2 but the arrowhead point towards 2, we can only traverse from 1 to 2 node in the opposite direction। हमेशा क्या होगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है। होप आपको ये बहुत अच्छी से समझ में आया होगा और आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।